Hello everyone, I Dr. Nilima Goswami. Today I'm going to start next topic is liquid dosage form. Now what is liquid dosage form? Liquid dosage forms are mostly preferred for children, infants, जिनको swallow करने में solid dosage form को swallow करने में difficulty होती है. Normally liquid dosage form उनके लिए highly preferable है. तो लेकिन यहाँ पे जो important parameter है वो है हमारा regarding liquid dosage form is solubility parameter and stability parameters. क्योंकि because of that liquid dosage form is less stable than solid dosage forms, so they are very much popular amongst the prescription of doctors, especially in pediatric doctors. Then the liquid dosage forms are prepared the active ingredients, dissolving the active ingredients in aqueous solution or in non-aqueous solvents. So aqueous solution, universally used water is used as a solvent for aqueous preparations, and sometimes drug is suspending in the solvents. There are following advantages and disadvantages of liquid dosage form. Then advantages are the drug is rapidly available for absorption. Then they are most suitable forms for infants. जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि स्पेशली जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है वो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा सुटेबल है. तो पहला हो गया हमारा फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन इज वेरी गुड, मतलब इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोसेज फॉर्म. सेकेंड वन इज absorption. First one is absorption and second one is suitable dosage form for infants, geriatric patients, ठीक है, aged person के लिए, और especially for mentally disturbed patients. They are suitable for those drugs which are create irritation in GIT if given in dry form. For example, जो भी drug solid form में GIT irritation produce करते हैं, for example bromides and iodides. Then in case of homogeneous solution, they ensure uniformity of dosage. Then doses are easily be varied as per the requirement of the patient. Then bitter and nauseous drugs can be given in sweetened, colored or flavored vehicle. Then hygroscopic and deliquescent medicament which are not suitable dispensed in dosage form, solid dosage forms, can easily be given in the liquid dosage forms. And because of its aesthetic property, they create good appeal and beneficial psychological effect on patients. Then disadvantages are liquid dosage forms are bulky and therefore inconvenient to carry, transport and storage. ठीक है, क्योंकि ये बॉटल के अंदर आते हैं तो इनका वेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और दे आर फ्रेजाइल. अगर कांच की शीशी है तो वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं. So the stability or next disadvantage is the stability of medicament in aqueous system is poorer than if they were formulated as a solid dosage form, particularly when medicaments are susceptible to the hydrolysis. तो जो ड्रग हाइड्रोलिसिस ससेप्टेबल होते हैं उन ड्रग को हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में कंपैरेटिवली नहीं दे पाते हैं. Then two incompatible drugs cannot be given together as it is possible in case of solid dosage form. There are chances of variation in the doses since patient used to measure at the time of taking dose.
Sometimes they might be in hurry and do not bother the accuracy of the dose. जैसे हम लोग लेते हैं वन, हमने बोला है कि 5 ml लेना है आपको, बट ठीक है थोड़ा ज़्यादा आ गया या कम आ गया और उसको हम थोड़ा प्लस माइनस में ले जाते हैं कि 4 ml ले लिया या 6 ml ले लिया। तो समटाइम्स जो है ये जो एक्यूरेसी ऑफ डोज पे पेशेंट्स नॉर्मली ध्यान नहीं रखते हैं। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लिक्विड्स प्रोवाइड सुटेबल मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज अगर आप वहाँ पे आपका जो व्हीकल है या सॉल्वेंट है अगर वो एक्वस है तो देयर इज अ चांस फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस काफ़ी प्रोन हो जाते हैं एंड देयरफॉर उसको एक मेंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसमें फिर प्रिजर्वेटिव हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो हमारा इसमें एक एक्सीपिएंट जो है वो थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। देन प्लीजेंट टेस्ट sometimes become hazardous among the children since they might be chances of overdose. तो समटाइम्स क्या है कि अगर हम उसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट बन जाता है उसका, या हम ऑरेंज फ्लेवर दे रहे हैं बहुत टेस्ट अच्छा होता है, तो बच्चे जो हैं वो कई समटाइम्स वो खुद भी कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ओवरडोज होने के चांसेस हो सकते हैं। देन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर दे इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ होल डोसेज फॉर्म। अगर आपका गलती से वो जो ड्रग है वो ग्लास बॉटल था, फ्रेजाइल बॉटल थी, अगर वो गिर गई और वो ब्रेक हो जाता है तो आपका पूरा जो डोज है, पूरा डोसेज फॉर्म जो है वो पूरा खराब हो जाता है। या फिर आपने प्लास्टिक कंटेनर है और आपने उसका जो कैप है वो गलती से खुला रह गया और वो गिर जाए, तो इसमें पूरा का पूरा एक्सीडेंटली अगर आपका ब्रेक कंटेनर स्पिल आउट होता है या ब्रेकेज होता है तो पूरा डोसेज फॉर्म ही आपका खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस कि लिक्विड कोज डिस्पर्शन सच लाइक सस्पेंशंस and emulsions require additional adjuvants like suspending agents, flocculating agent, viscosity enhancers, emulsifying agents etc. to maintain the stability of the product. ठीक है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें काफी सारे उसमें एक्सिपिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। देन they require large volume for one dose as compared to 2 solid dosage form. सॉलिड डोसेज फॉर्म में कंपैरेटिवली जो है वो डोज कम होती है या क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, बट इन लिक्विड डोसेज फॉर्म क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ती है। दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द सेम नंबर ऑफ डोसेज ऑफ द solid dosage form. Then sweetening liquid contains sugar as sweetening agent which are not recommended for diabetic patients. ठीक है, तो नॉर्मली हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो एज अ स्वीटनर ऐड करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म से वो हम उसमें सैकरिन या शुगर ऐड करते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नॉर्मली हम उसको ये रिकमेंडेड नहीं है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ liquid dosage form. Now next comes to classification of dosage form, classification of liquid dosage form. Then liquid dosage form is classified into two. Number one is monophasic and second one is biphasic. Monophasic and biphasic liquid dosage form. Then monophasic dosage form, they have monophasic liquid dosage form have 4 categories. Number one is for oral use, for external use, for special use, and for parental use. ठीक है, तो यहाँ पे मोनोफेसिक की हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, ओरल यूज, एक्सटर्नल यूज, स्पेशल यूज एंड फॉर पेरेंटल यूज. तो एग्जाम्पल फॉर ओरल यूज आर सिंपल मिक्सचर्स, concentrates, syrup, elixirs, drops, linctures, tinctures and spirit.
तो ये हमारे पास इसकी जो कैटेगरी है वो है मिक्सचर्स, सिंपल मिक्सचर्स आ जाएंगे ओरल में, देन सिरप, देन एलिक्सर्स, देन ड्रॉट्स, then drops, then linctures, tinctures, then spritz. Next comes to external use. यहाँ पे lotions, liniments and collodions. ठीक है, तो ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल में. देन फॉर स्पेशल यूज, तो स्पेशल यूज की कैटेगरी काफी बड़ी कैटेगरी है, जैसे सच एज गागल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेन्स, नेसल स्प्रे, डचेस, एनिमाज, eye drops, ear drop, inhalations, and aerosols. ठीक है, तो ये हमारी स्पेशल यूज कैटेगरी है. देन पेरेंटल में हमारे एम्प्यूल्स एंड वायल्स, जो भी ये एम्प्यूल्स एंड वायल्स जो है वो हमारे कंटेनर्स हैं. तो पेरेंटल यूज पे जो भी इंजेक्टेबल्स हैं वो सब इसमें कैटेगरी में आते हैं. देन नेक्स्ट कम्स टू biphasic, classification of biphasic liquid dosage form. So that biphasic liquid dosage form is majorly categorized into two. Number one is suspension and second one is emulsion. ठीक है, that suspension are solid in liquid. ठीक है, तो solids are suspended in liquids, and in emulsion liquid are miscible or mixed with liquids, so they are known as emulsion. Now in suspension, same for oral use, for external use, for ophthalmic आई प्रिपरेशंस के लिए जो यूज किया जाता है, फॉर ऑप्थेल्मिक एंड फॉर पेरेंटल. Okay, example for oral use for suspensions. Number one is mixtures with diffusible solids, mixtures with indiffusible solids, then precipitate forming, precipitates forming mixtures. Then comes to external. For external, lotions, enemas, inhalations and aerosols, inhalation and aerosol. And for ophthalmic preparations, eye drops. For parenteral use, all injectables. Okay, then next comes to emulsion. That emulsion is categorized into three. First one is oral, second one is external, and third one is parenteral. ओरल में आते हैं हमारे इमल्शन सिर्फ
फॉर एक्सटर्नल यूज हमारे हैं लोशंस, लिनीमेंस एंड एनिमास। पेंटल में ऑल इंजेक्टेबल्स। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक। देन मोनोफेसिक का क्लासिफिकेशन हो गया है एंड देन बाइफेसिक का क्लासिफिकेशन है। बाइफेसिक इज क्लासिफाइड इन टू, नंबर वन इज सस्पेंशन एंड सेकेंड वन इज इमल्शन। सो अब लेट्स डिस्कस अबाउट द मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं स्पेशली मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म। दैट मोनोफेसिक वर्ड मींस मोनोफेसिक। मोनोफेसिक मींस मोनो मींस सिंगल और फेस मीन फेस। तो एक फेस दैट कंटेन्स ओनली वन फेस इज नोन एज मोनोफेस। देर यहाँ पे कोई दूसरा एक कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड है वो एक सिंगल फेस पे पूरा डिसॉल्व हो गया है, तो दैट इज नोन एज monophasic dosage forms. So the word monophasic suggested that this system contains only one phase, no matter that components might be minimum two or more than two. So main definition of monophasic is defined as the homogeneous one phase system containing two or more components is known as monophasic system. So that one phase is solvent and other phase is solute. तो in liquid in monophase जो हमारा monophasic है, in monophasic जो हमारा solute and solvent है, that solute is totally soluble in solvent. That solvent is वो एक भी हो सकता है और more भी हो सकते हैं, और that उसके साथ मिक्स होकर के वो एक फेस बना रहा है. Then solute in general, the solvent is present in large quantity and that depends on कि आप जैसे हम सिरप की बात करते हैं तो सिरप में अगर एक आईपी सिरप की बात करते हैं तो दैट आईपी इन आईपी सिरप सॉल्यूट कंटेन यानी कि शुगर कंटेन 66.7 और इन केस ऑफ यूएसपी इट कंटेन्स 85%. तो दोनों में शुगर है, तो आपका वो कितना अवेलेबल है तो वो हम डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सिरप में जो सुक्रोज है दैट इज कंसीडर एज अ सॉल्यूट. देन नेक्स्ट कम्स टू, अब लेते हैं फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, जो मेन फर्स्ट एग्जांपल है मोनोफेसिक के, दैट आर मिक्सचर्स. नाउ व्हाट आर मिक्सचर्स? दैट मिक्सचर्स आर डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड मोनोफेसिक प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज. ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन में बताया, दे आर फॉर ओरल यूज एंड they dissolve in suitable vehicles. The most suitable vehicle for this dosage form is water because of its lack of toxicity, and that water also having physiological compatibility, and it is having ability to dissolve wide range of material, especially purified water, which is official in Indian pharmacopoeia, is used for is used as a vehicle in pharmaceutical preparations rather than potable water. जनरली जो हमारे मिक्सचर्स हैं उन मिक्सचर्स को हम ये दे आर मल्टी डोज एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि जो हमारी बॉटल्स आती हैं ये मिक्सचर्स की, दे आर मल्टी डोज कि आप एक बार में खत्म नहीं होता है, ये मल्टी डोज हैं. तो इस इन इंग्रेडिएंट्स को हमें एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन हमें इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप मल्टी डोज कंटेनर्स हैं या आपकी मल्टी डोज डोसेज फॉर्म है तो उसमें कंटैमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं. दे आर supplied in multi-dose और airtight container. They sometimes अगर आपका मेडिकमेंट जो है वो लाइट सेंसिटिव है तो हम इसको एम्बर कलर बॉटल में भी सप्लाई करते हैं. तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, एंड जो इसके ऊपर लेबल आता है दैट लेबल कंटेन्स कंटेंट
और अगर आप क्या उसको जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट में क्या क्या सॉल्वेंट है उसकी पूरी परसेंटेज। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अगर आपकी डोज सपोज उसका 5 ml है तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा दैट 5 ml कंटेन्स हाउ मच % ऑफ डोज, यानी यहाँ पे जो ड्रग है वो उस 5 ml में कितना कंटेन करता है, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है। देन स्टोरेज कंडीशन, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो ये सारी चीजें हमारे इस कंटेनर के ऊपर हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबल। तो ये है हमारे मिक्सचर्स। नेक्स्ट कम्स टू सिरप। तो ये सिरप हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आएंगे सिरप आईपी एंड सिरप बीपी। तो एग्जाम में हम क्वेश्चंस, सिरप यूएसपी, एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप आईपी एंड सिरप यूएसपी एंड व्हाट इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप आईपी एंड सिरप यूएसपी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।